options. So just like a brief about MWF. So MWF is a social welfare group formed by like-minded professionals to work for the career betterment of our women community in the field of education as well as employment. We have seen that there are many women brothers associated and working on various social initiatives at the individual level. The objective of this group is to get all these professionals in a single platform so that with the whole intention of helping the community and the society at large. In the last few years, MWF has organized many successful sessions like career guidance programs for school students, workshops and webinars on specific skills like data science, cloud computing, CA, food processing, networking, what are the options available after SSC, HSC, etc. We have also we have also conducted many scholarship guidance session, resume drafting session, interview preparation session, technology guidance sessions, and job placement assistance sessions as well. I would encourage each and every women professionals to join or be added to our WMWF WhatsApp group so that we can have more active participations as appropriate. So I would like to thank Mohammad Gojaria, Mohammad Bhorania, and Masood Kadiwal for your precious time for this session today, which is going to be paramedical career after 10th and 12th. I'm sure that you guys will be an inspiration and guidance for many more future paramedics from our community. Just wanted to highlight like Mohammad Gojaria is a consultant at Suburban and works at Thyrocare. Mohammad Borania has also done his, he was supporting Millat, and same with Masood Kadiwal, who is a lab technician at Millat SRL. This is a good opportunity for students who cannot crack NEET or who are not able to afford or enroll in the specialized courses like MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS, etc. Right? So paramedical courses, as you guys will learn, that it's a very relatively short course, comparatively easy and cheaper. It is a respectable career and I would say easy to get in. Okay, MWF has a goal to get 50 MBBS students and 5 MDs from our community by 2030. So this webinar is one of the steps towards achieving those goals in medical excellence. We also need your support to identify bright students from our relatives and community so that they are connected with us and we can help them and guide them. I would recommend that we as a student or professionals or parents should attend this kind of webinars so that at least if it is not directly related to our children, but at least we can pass on this knowledge to our well-wishers or our relatives and so on. I think it's an excellent opportunity for students to explore this career, which is, I believe, not much unearthed. And also generally people have this perception that medical education is very tough, expensive, and hence most of them just back out. But paramedic has created what you call a different perception. I've seen like it's easy to get in and it's what you call highly respectable. So without taking much time, I would just pass on to Mohammad Gojaria so that he can help us understand the different dynamics of what paramedical career is all about and what are the process and so on. So over to you, Mohammad Bhai. Assalamu alaikum. Just for records, I think we can take this session in English, Hindi, Gujarati, whatever is appropriate. The basic idea is to get more and more people know about this session, right? तो हम लोग इसको हिंदी में भी कर सकते हैं, गुजराती में कर सकते हैं, जो लोगों को कंफर्टेबल हो. मेरे ख्याल से हिंदी में ज्यादा अच्छा रहेगा. इंशाल्लाह हिंदी में ज्यादा बेहतर रहेगा. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. बेसिकली जो पैरामेडिकल फील्ड है, आज से करीब 5-6 साल पहले इसके बारे में लोग नहीं जानते थे. बहुत रेयर लैब टेक्नीशियंस बहुत कम थे एंड जो भी है रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस वगैरह.
और अभी आने वाले कुछ सालों में, जैसे मैं बताऊंगा, मेरा 5 साल का करियर रहा है, पिछले 5 सालों में इतने पैरामेडिक्स बढ़ गए हैं आज, क्योंकि हर एक को इस फील्ड की एक वैल्यू पता चली है, एक कीमत की भी। सबसे कम, सबसे शॉर्ट टाइम में कोर्सेज कंप्लीट हो रहे, कम एक्सपेंस लग रहा है, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा नीट पीजीएन और ये सब कोई प्रोसेस नहीं है उतना सब। तो एक कॉमन स्टूडेंट्स भी, जो एक एवरेज स्टूडेंट है, वो भी ये सब कोर्सेज अचीव कर सकते हैं। तो इसीलिए करके पैरामेडिकल फील्ड के बारे में हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारे जो लोग हैं, जैसा मैंने जब कॉलेज किया अपना, जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मैंने जब अपना डिग्री कंप्लीट किया, तब मुस्लिम स्टूडेंट्स की तादाद बहुत कम थी। और इवन गवर्नमेंट में हमारे लोग, अगर मोमन समाज के लोगों को कहा जाए, तो वो कोई भी अब तक तो मुझे नहीं मिला था। माशाल्लाह बहुत से अपने लोग हैं जो मेरे पहले से, जैसा मसूद भाई ये लोग सब कर रहे हैं मेरे पहले से, मोहम्मद है, मसूद है, ये लोग मिल्लत हॉस्पिटल में भी काफ़ी सब है हमारे स्टूडेंट्स। तो इसीलिए आज हम चाहते हैं कि पैरामेडिकल के बारे में हर कोई जाने, हर कोई जाने, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के बस की बात नहीं। अगर सपना होता है किसी का कि मेडिकल फील्ड में मुझे अपना करियर बनाना है, अब हर एक के बस की बात नहीं होती कि वो एमबीबीएस करे, बीयूएमएस करे, बीएचएमएस करे, या जो भी फैकल्टी है, हर एक के बस की बात नहीं होती। कोई किसी का परसेंटेज कम होते है, कोई स्टडीज में एवरेज होता है तो नीट क्रैक नहीं कर सकता, किसी की फाइनेंशियल स्टेटस उतना अच्छा नहीं होता। तो यही सारी कंडीशन है जिसकी वजह से हमें सारी चीज़ें देख कर चलना होता है। तो ये एक पैरामेडिकल फील्ड जो है, वो एक कम कम प्राइस में, कम टाइम में एक अच्छा करियर बना सकते हैं, एक रिस्पेक्टिव करियर बना सकते हैं, इसमें अच्छी अर्निंग है, हर तरह से बेहतर है। तो इसीलिए मैं आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। पैरामेडिकल जो बेसिकली है, मेडिकल फील्ड की बैकबोन कहा जा सकता है इसे। बैकबोन, अभी इंसान की अगर रीढ़ की हड्डी नहीं रही तो उसको चलना मुश्किल होगा। इसी तरह से मेडिकल फील्ड भी है, पैरामेडिकल फील्ड भी इसी तरह से है कि अगर मेडिकल फील्ड में पैरामेडिक्स टेक्नीशियन जो है, उनका अगर इन्वॉल्वमेंट ना रहे, तो डॉक्टर्स खुद पूरी तरह से पेशेंट को ट्रीट करने से पूरी तरह से पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते वो भी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर उनको ट्रीट करते हैं, या जो भी है कि भाई आप ये टेस्ट कर लो, ये इसके रिजल्ट्स आएंगे, तब हम आगे डिसीजन लेंगे कि क्या करना है। तो इसीलिए डॉक्टर्स के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से ये कोर्सेज जो है मेडिकल फील्ड को, जो पैरामेडिकल टेक्नीशियंस होते हैं, मेडिकल फील्ड को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। हालांकि वो कोई डॉक्टर नहीं होते, ना एमबीबीएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, कोई भी डॉक्टर की डिग्री उनके पास नहीं होती, मगर वो किसी डॉक्टर से कम भी नहीं है। हाँ, लोग ये ना समझे कि भाई पैरामेडिकल कर रहे क्या रिस्पेक्ट है, क्या वैल्यू है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पूरी तरह से एक रिस्पेक्टिव फैकल्टी है। हाँ, तो इसीलिए हमें अपना इसमें अगर करियर बनाने के लिए अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा है तो वो बहुत अच्छा है, मेहनत करे, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और गाइडेंस के लिए तो हमारी टीम हर तरह से तैयार है, हम लोगों से भी आप कभी भी कोई क्वेश्चन वगैरह लेंगे तो कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम शुरू करते हैं कि पैरामेडिकल के अंडर में एग्जैक्टली क्या, पैरामेडिकल के अंडर में एग्जैक्टली कौन कौन से कोर्सेज आते हैं। पहले तो ये हमें ये पता होना चाहिए, आज पैरामेडिकल को लोग क्या जानते हैं, लैब टेक्नीशियन, ये सबसे बेसिक और कॉमन फील्ड है। तो पैरामेडिकल में लोग ये तो जानते हैं कि भाई लैब टेक्नीशियन होता है, और उन्हें नहीं पता एग्जैक्टली आगे इसमें और क्या क्या ऑप्शन है करियर के लिए। तो इसी तरह से मैं आपको पहले तो बता दूंगा कि क्या क्या ऑप्शन है करियर के लिए। तो सबसे कॉमन लैब टेक्नीशियन के बारे में आप जानते हैं। लैब टेक्नीशियन में आपको डिप्लोमा भी अवेलेबल है, बीएससी है, इसमें एमएससी है, बहुत से ऑप्शन है। और इसके बेसिस पे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट लैब्स हैं, कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट से आप कहीं भी इसके आधार पर काम कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है फिर आपकी नॉलेज पर, आपके टैलेंट पर, आप कितने एक्सपीरियंस हो, इस पर डिपेंड करता है आपको। तो लैब टेक्नीशियन के अलावा जो फैकल्टीज हैं उसके बारे में बात करेंगे। और रेडियोग्राफी टेक्नीशियन, रेडियोग्राफी टेक्नीशियन में आपको जो बेसिक जानते हैं, जैसा कि आप लोग एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, सिटी स्कैन, एमआरआई, ईसीजी, सोनोग्राफी, ये सारी चीज़ें जो होती है ये रेडियोग्राफी के अंडर में आती है। हाँ, तो आज इनका भी डिमांड सबसे ज़्यादा है। जैसा कि कोविड के टाइम में आप लोगों ने हर एक ने सुना होगा, सिटी स्कैन और एक्सरे का इतना ज़्यादा वैल्यू बढ़ गया है अभी के। सिटी स्कैन जो मतलब लोग इतना नहीं जानते थे, बहुत मेजर डिजीज के लिए सिटी स्कैन हुआ करता था, अब वो नहीं है। आज इसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा है रेडियो में। तो इसी तरह से, और
थर्ड फैकल्टी उसमें फिर हमारी आएगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है? जो ब्लड बैंक्स होते हैं हमारे, जहाँ से हम कोई ऑपरेशन होता है किसी का, तो सर्जरी वगैरह के टाइम ब्लड मंगवाते हैं हॉस्पिटल्स में, तो हम ब्लड बैंक से कांटेक्ट करते हैं। ब्लड बैंक हमें ब्लड ग्रुप में फर्स्ट हमें ब्लड सैंपल देना होता है पेशेंट का, उस सैंपल को क्रॉस मैच करेंगे और आफ्टर दैट हमें सेम ब्लड ग्रुप का सैंपल मैच करके वो प्रोवाइड करेंगे हॉस्पिटल के लिए। तो इसी तरह से जैसे अभी हाल ही में हमारे कॉलोनी में भी, मोमिन नगर में भी एक ब्लड ग्रुप के लिए कैंप लगा था, ब्लड डोनेशन के लिए कैंप लगा था। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन जो होते हैं, वो जो ब्लड हम डोनेट कर रहे हैं यहाँ पर, उस ब्लड को आगे चलकर लैब में कुछ उसके प्रोसेस होते हैं। वो बस यूँ नहीं होता कि डोनेट हुआ और वो एज इट इज आके पेशेंट के पास जा रहा है, नहीं। वो ब्लड यहाँ पर डोनेट हो रहा है, उसके बाद लैब में जाने के बाद काफ़ी सारे केमिकल एनालिसिस वगैरह सब होते हैं, उसके सारे टेस्टिंग्स होते हैं उस सैंपल के, और जो भी है। और जब किसी अगर पेशेंट को उस ब्लड की ज़रूरत है, तो पहले उस पेशेंट का सैंपल मंगवाया जाता है, उसको ब्लड ग्रुप के साथ क्रॉस मैच किया जाता है, ताकि वो सैंपल बाद में पेशेंट के बॉडी में जाने के बाद वो ब्लड किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना क्रिएट करे। अगर उसे क्रॉस मैच किए बगैर दे रहे, अगर प्रीवियसली जो डोनेटेड सैंपल है उसको अगर कुछ शुगर है या एनीथिंग, कोई भी बीमारी है उसको, तो वो आगे चल के उस रिसेप्टर को प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। इसलिए करके ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियंस का काम यही होता है कि उस ब्लड को कम्प्लीटली एनालाइज करना, फिर उसकी क्वालिटी का ध्यान रखना, उसको कितने दिन तक स्टोर करना है, क्या केमिकल्स उसमें यूज हुए उसको स्टोर करने के लिए, कितने टेम्परेचर पे उसको स्टोर करना है, तो ये सारी चीज़ें उनके अंडर में आती हैं। तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी है, और इसी के साथ मतलब ये बहुत से ब्लड बैंक्स है, हॉस्पिटल्स की ब्लड बैंक्स है, प्राइवेट है, हर तरह से कहीं भी आप इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है। और इसी के साथ हमें एक चौथे नंबर पे इसमें आता है ऑप्टोमेट्रिस्ट टेक्नीशियन। बहुत से लोग जानते होंगे ऑप्टोमेट्रिस्ट के बारे में, वो काफ़ी बेसिक और कॉमन फील्ड है। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट का जो है बेसिकली ये ऑप्टोमेट्रिस्ट टेक्नीशियन का जो है, ये हम ऑप्टिक्स की शॉप में जाते हैं जब चश्मे वगैरह बनवाने के लिए, तो पहले के टाइम में हुआ करता था कि भाई जो भी है, जो दुकानदार है, जो ऑनर है, वही खुद ही सब कुछ करता था, एक नंबर चेक करना या जो भी है, कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में जो भी। बट अब वो नहीं रहा, अब लोगों को एक एजुकेटेड पर्सन की उसमें ज़रूरत होती है। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट टेक्नीशियन का काम यही है कि हम जो भी, अगर कोई पेशेंट हमारे पास आ रहा है, उसके नंबर चेक करना है। वो बेसिकली जो एक ऑप्थल्मिक डॉक्टर होता है, उसका 50% काम डिपेंड होता है ऑप्टोमेट्रिस्ट पर। हम अगर कोई ऑप्थल सर्जन के पास जाते हैं या ऑप्थल कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सबसे पहला काम वो क्या करेगा, पहले वो बेसिक एग्जामिनेशन जो करना है वो करके वो पेशेंट को भेजेगा ऑप्टोमेट्रिस्ट टेक्नीशियन के पास। उन्हीं के यहाँ पर हॉस्पिटल में मोस्ट ऑफ तो अवेलेबल होते हैं सब, तो वो उनके नंबर वगैरह चेक करेगा, कौन सा लेंस यूज हो रहा है, क्या है क्या नहीं, वो लेंसेज के बारे में बताएगा। तो ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है आज। कॉन्टैक्ट लेंस और स्पेक्स ग्लासेस वगैरह यूज़ करना तो बहुत कॉमन हो गया है, बहुत लोगों को नंबर्स है, कुछ लोग ज़रूरत के हिसाब से पहनते हैं अपने। तो इसीलिए ये भी एक रिस्पेक्टेड फील्ड है, इसकी वजह से बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं हम आगे चल के। और इसमें जिस तरह से कि हम इसमें पर्सनल खुद के बेसिस पे भी हम अपना खुद का सेटअप भी कर सकते हैं, जिस तरह से लेबोरेटरी टेक्नीशियन में भी हम खुद का सेटअप कर सकते हैं। हमें लाइसेंस, जब हम डिग्री होल्डर हो जाते हैं, बीएससी डिग्री होल्डर हो जाएंगे, तो हमें लाइसेंस होता है, हमें अथॉरिटी होती है कि हम अपना खुद का सेटअप करें। फिर अगर तुम अपने उसमें मार्केटिंग कर सकते हो या जो भी, और अगर जॉब भी करते हो उसमें, तो जॉब में भी बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास। बहुत अच्छे अच्छे बड़े लैब्स हैं जहाँ अच्छी सैलरी बेसिस पर आपको काम मिलेगा। और जो भी है, रेडियोग्राफी में भी सेम है। रेडियोग्राफी में पर्सनल सेटअप डालने के लिए थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव हो, बहुत उसकी मशीनरीज जो होती है काफ़ी कॉस्टली होती है। तो बहुत है, अगर हाँ आप फाइनेंशियली स्टेबल है, अच्छा है स्टेटस फाइनेंशियली, तो यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं इसको। ठीक है। तो उसी तरह से हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर पर्सनल सेटअप करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि मैं कहूँगा कि उसका गवर्नमेंट बेसिस पे या हॉस्पिटल से कनेक्टेड जो होते हैं, वो उसी में कॉमनली ऑपरेट होता है, ब्लड बैंक्स वगैरह जो है। और उसके बाद आता है एक परफ्यूजन टेक्नीशियन। आज हम देखेंगे, जैसा हम बेसिकली जानते हैं कि जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, हार्ट सर्जरी होती है, उनकी बाईपास सर्जरी होती है या पेसमेकर उनको लगाया जाता है या जो भी है। और अभी करंटली हम देखने जाए तो कुछ हार्ट सर्जरीज हो रही है,
जैसा हमारे यहाँ इंडिया में भी 3-4 सर्जरी हो चुकी है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन का। अब तक की ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी आने पिछले 1 साल से पहले। आने वाले पिछले 12 महीनों में ये जो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन है वो एक सक्सेसफुल प्रोसेस रहा है। तो उसको ट्रांसप्लांटेशन के दौरान बहुत से काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, काफ़ी सारी मशीनरीज की ऑपरेटिंग होती है, तो ऑब्वियसली वो सारा काम डॉक्टर्स करते हैं। बट डॉक्टर्स को असिस्ट करने के लिए उसके लिए कोई नर्स या किसी की ज़रूरत नहीं होती, वो नहीं कर सकती ये काम। उसके लिए एक प्रोफेशनल फील्ड है परफ्यूजन टेक्नीशियन। तो जो परफ्यूजन टेक्नीशियन का काम है वो उस कंप्लीट प्रोसेस में जो भी 2 घंटे 8 घंटे 10 घंटे का जो प्रोसेस है उस पूरे प्रोसेस में डॉक्टर को असिस्ट करना, ये उसका काम है। मतलब अगर वो न रहे तो डॉक्टर को किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसलिए परफ्यूजन टेक्नीशियन का उस वक्त पर वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। पिछले साल 2 साल पहले इस फील्ड की उतनी डिमांड नहीं थी, क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांटेशन नहीं थे, बेसिक जो काम थे हार्ट के जो बाईपास सर्जरीज है या पेसमेकर लगाना है जो भी है, तो उसके लिए तो उतनी ज़्यादा उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। बट आने वाले टाइम में और हम अगर कहें तो करंट स्टेटस भी उसमें एक अच्छा करियर हम जो हार्ट स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल्स हैं, जैसा मसीना हॉस्पिटल है हमारे यहाँ मुंबई में, तो इसी तरह के हॉस्पिटल्स में हम अपना जॉब वगैरह काफ़ी तरह अच्छी जॉब्स अवेलेबल है और एक अच्छी सैलरी एक्सपेक्टेशन के साथ आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। तो इसमें भी कोई प्राइवेट सेटअप करना तो हमारे लिए मुश्किल है और प्राइवेट सेटअप ऑब्वियसली इसमें नहीं हो सकता। ये एक सर्जन के अंडर में ही हम काम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसी की तरह से हम आएंगे नेक्स्ट ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन है। ये ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन क्या है? जिस तरह से एक सर्जन ऑपरेशन करता है पेशेंट का, तो उस ऑपरेशन थिएटर के अंदर काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स, काफ़ी सारी मशीनरीज और जो भी है चीज़ें यूज़ होती है। तो बेसिक जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसको यूज़ के लिए बेसिक तो एक नर्स होती है, डॉक्टर्स के साथ असिस्ट करने के लिए असिस्टेंट स्टाफ होता है, असिस्टेंट डॉक्टर्स होते हैं। उसी के साथ जो मशीनरीज ऑपरेट करना है उसके लिए अभी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो असिस्टेंट डॉक्टर्स होते हैं, जो नर्स होते हैं, उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती, वो इसके लिए एजुकेटेड नहीं है उतने, जो ओटी टेक्नीशियंस की जो ऑपरेशन थिएटर की जो मशीनरीज है उसे ऑपरेट कर सके। तो उसके लिए हमें एक ओटी टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है। तो इस फील्ड के अंदर भी हमारे पास बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी है। हाँ, क्योंकि इसके अंदर अगर हम देखें तो आज मोस्ट प्रॉब्ली बेसिक जो नर्सिंग होम्स है यहाँ पर भी ऑपरेशन थिएटर होते हैं। हाँ, तो इसी तरह से हमें ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ बड़े हॉस्पिटल्स में ही आप जॉब कर सकते हैं या कोई बड़े इंस्टीट्यूट्स वगैरह में नहीं, बेसिक नर्सिंग होम्स में भी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए इस फील्ड में भी हम एक अच्छा करियर बना सकते हैं और एक अच्छी सैलरी एक्सपेक्टेशन भी है इसमें। इसी के साथ आते हैं हम फॉरेंसिक मेडिसिन टेक्नीशियन। फॉरेंसिक जिस तरह से आप लोग बेसिक फॉरेंसिक्स तो जानते हैं सब, ये जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, जो मर्डर केसेस है या किसी भी तरह के जो पुलिस केस होते हैं, उसमें डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। हॉस्पिटल्स में जो डेथ होती है विद इन 48 आवर्स जो भी पेशेंट की डेथ हो रही है उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, तो ताकि उसको हम एग्जामिन कर सकें द कॉज ऑफ डेथ, कि पेशेंट की नेचुरल डेथ है या कुछ मर्डर केस है या सुसाइड केस है या जो भी है। तो फॉरेंसिक मेडिसिन में एक दो फील्ड होती है, एक होता है फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस जो होता है वो कंप्लीट डॉक्टर होता है, फॉरेंसिक सर्जन होता है, वो उसका काम है फॉरेंसिक साइंस की फील्ड में जो है, जो मेजर एनालिसिस करने होते हैं। और जो फॉरेंसिक मेडिसिन है ये एक बेसिक टेक्नीशियन है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट की डेथ हुई है, अगर कोई पॉइजन यूज़ किया है, उसमें सुसाइड केस है, तो वो एग्जामिनेशन करना है कि भाई वो क्या पॉइजन था, क्या ड्रग्स था, उसकी बॉडी का क्या है। तो उन सब के लिए जो सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं उनकी बॉडी से पोस्टमार्टम के दौरान, चाहे वो सलाइवरी सैंपल हो या डीएनए सैंपल्स हो या किसी भी तरह के सैंपल्स, तो उन सारे सैंपल्स को कलेक्ट करके एक जो एग्जामिनेशन आगे होता है वो सारा एक फॉरेंसिक मेडिसिन टेक्नीशियन का टाइप काम है। ये काम करते हैं एज ए लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन जो है वो नॉर्मल पर्सन्स के ब्लड सैंपल्स, यूरिन सैंपल्स वगैरह को एनालिस करते हैं लैब में। और फॉरेंसिक मेडिसिन जो है वो डेड बॉडीज के जो सैंपल लिए होते हैं वो उनके सैंपल्स एनालिसिस करते हैं, ताकि हम डेथ का रीज़न जान सके और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बन सके और वो आगे पुलिस को हैंड ओवर कर सके। तो ये फील्ड भी एक बहुत, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम है,
क्योंकि आज उतने ज़्यादा पोस्टमार्टम सेंटर्स वगैरह मोस्ट प्रॉब्ली होता है गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। हाँ, अगर तुम्हें गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी जॉब है तो बहुत अच्छी सैलरी बेसिस पे काम कर सकते हैं इसमें। अदर देन दूसरी फील्ड्स के मुकाबले इसमें सैलरी अर्निंग ज़्यादा है फॉरेंसिक मेडिसिन में, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि आज कोई नहीं चाहता कि इस तरह के पुलिस केसेस वगैरह में इन्वॉल्व होना, तो बहुत कम लोग होते हैं इसमें करियर बनाने वाले। जो बनाते हैं बहुत अच्छा उनका आगे फ्यूचर है, ब्राइट फ्यूचर। तो इसी के साथ आगे आएंगे हम इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियन। अब इमरजेंसी मेडिसिन के नाम से हमें एक बेसिक मीनिंग समझ आता है कि जैसा हम हॉस्पिटल, अगर कोई भी कैजुअलिटी केस होता है तो फर्स्ट उसको ले जाया जाता है डायरेक्टली 24 आवर्स हॉस्पिटल्स में कैजुअलिटी डिपार्टमेंट होता है। फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसे ले जाया जा रहा है, डायरेक्टली हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में एडमिट किया जाता है। तो उस वक्त डॉक्टर तो अवेलेबल होते हैं कैजुअलिटी डिपार्टमेंट, डॉक्टर के साथ एक असिस्टेंट होगा, दैट इज इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियन कहेंगे हम उसे। वो एक पूरी तरह से डॉक्टर तो नहीं है मगर वो किसी डॉक्टर से कम भी नहीं है, क्योंकि अगर डॉक्टर के एब्सेंस में भी वो हमारा सारा काम कर सकते हैं। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट तो पेशेंट को देनी होती है एडमिट करने के पहले, या उसकी सर्जरी, अगर कोई मेजर एक्सीडेंट है उसकी सर्जरी के पहले उसे जो भी बेसिक उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देनी है, वो सारा काम इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियन के अंदर में आता है। कोई बर्न, अगर कोई जल गया है, कहीं आग लगी है, उसमें कुछ लोग जल गए, उन्हें भी हॉस्पिटल में इमीडिएटली लाया जाता है कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में, तो उसके लिए भी। और साथ ही साथ इनके लिए इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियन के लिए दो जॉब अपॉर्चुनिटी है। एक तो हॉस्पिटल में वो कैजुअलिटी डिपार्टमेंट के अंदर काम कर सकते हैं, सेकेंड वो जो आईसीयू, कार्डियक केयर एम्बुलेंस है या जो भी इमरजेंसी एम्बुलेंस है उसमें भी वो काम कर सकते हैं। क्योंकि जब पेशेंट को उसके स्पॉट से हॉस्पिटल्स तक लाने के दौरान किसी न किसी तरह की फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना जरूरी है। अदरवाइज अगर ट्रैफिक में है, लेट हो रहा है एम्बुलेंस, तो डॉक्टर्स भी अवेलेबल होते हैं वहाँ, बट एक डॉक्टर अकेले पूरी तरह से सब कुछ ऑपरेट नहीं कर सकते। मशीनरीज है या जो भी पेशेंट को हैंडल करना है, तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर अकेले हैंडल नहीं कर सकते। तो उनके साथ एक इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियन होता है, वो डॉक्टर को असिस्ट करते हैं पूरी तरह से। डॉक्टर की एब्सेंस में भी वो किसी न किसी हद तक अपना काम कर सकते हैं। तो ये हो, और इसमें भी जॉब अपॉर्चुनिटीज काफ़ी अच्छी है, सैलरी अर्निंग भी है, कोई किसी तरह की टेंशन नहीं आज, क्योंकि कैजुअलिटी डिपार्टमेंट तो हर एक हॉस्पिटल में होता है, और एम्बुलेंस की तो आज के टाइम में कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है आप लोग भी समझ सकते हैं, आप लोगों की भी देखी हुई बात है। तो इसमें भी एक अच्छा करियर बना सकते हैं अपना। और उसी के साथ आएगा नेक्स्ट रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन। रेडियोथेरेपी बेसिकली रेडियोग्राफी जो हमने देखा, वो एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई वगैरह जो भी है, स्कैनिंग के जो सारे प्रोसेसेस है वो सारे रेडियोग्राफी के अंदर में आएंगे। रेडियोथेरेपी के अंदर में जो हम जो कैंसर पेशेंट्स को थेरेपी देते हैं, जैसा कि हमने कहते हैं केमोथेरेपी दे रहे हैं या जो भी है, कैंसर पेशेंट्स को जो ट्रीटमेंट देते हैं तो एक उनको थेरेपी दी जाती है, वो रेडियोथेरेपी उसे कहा जाता है। तो एक टेक्नीशियन के अंडर में आता है। वो डॉक्टर्स होते हैं वहाँ सिर्फ एनालाइज करने के लिए, जो भी है कि क्या डोजेज देने हैं जो भी है पेशेंट को, वो उसके लिए होते हैं। आगे की जो थेरेपी है वो टेक्नीशियन खुद ऑपरेट करते हैं डॉक्टर्स के असिस्टेंट में। तो इस फील्ड में भी हम एक अच्छा करियर बना सकते हैं। हाँ, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम है, बट जो भी इसकी जो एडमिशन सीट्स है ये भी बहुत कम होती है रेडियोथेरेपी की। मोस्ट प्रॉब्ली प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में तो ये सब नहीं होता, इमरजेंसी मेडिसिन, रेडियोथेरेपी, ये सब प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में नहीं होता, ये गवर्नमेंट फैकल्टी में ही हमें इसका स्कोप मिलेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है न्यूरोलॉजी टेक्नीशियन। एक जो न्यूरो सर्जन होता है, दिमाग से रिलेटेड जो भी किसी भी तरह के डिजीज के लिए पेशेंट अगर डॉक्टर को कंसल्ट करता है, न्यूरो सर्जन को कंसल्ट करते हैं, तो न्यूरो सर्जन किसी न किसी तरह के टेस्ट वगैरह करते हैं उस पेशेंट के ऊपर, लाइक ईईजी और किसी तरह के जो भी है टेस्ट होते हैं नर्व से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड। तो वो सारे टेस्ट को परफॉर्म करना एक न्यूरोलॉजी टेक्नीशियन का काम होता है। तो ये न्यूरोलॉजी फील्ड में भी हम एक अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। डॉक्टर के असिस्ट में है, हम फुल टाइम और पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। डे एंड नाइट 24 आवर्स सर्विस होती है यहाँ पर भी, पेशेंट को हमें हर तरह से सर्व करना होता है। न्यूरॉन्स से रिलेटेड सारी डिजीज के लिए इसमें हमें अपॉर्चुनिटी है। इसी के बाद आएगा नेक्स्ट कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन। कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन और परफ्यूजन टेक्नीशियन कुछ हद तक सिमिलर है। हाँ, दोनों फैकल्टीज अलग अलग है, क्योंकि परफ्यूजन टेक्नीशियन जो है वो अभी अभी चल रहा है,
जो कार्डियो, जैसा मैंने बताया हार्ट ट्रांसप्लांटेशन वगैरह में वो ज़्यादा इफेक्टिव है। कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन जो बेसिक सब है, लाइक ईसीजी वगैरह है, पेशेंट का QD में जा रहे हैं, तो ये सब प्रोसेस को ऑपरेट करने का सारा काम कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन के अंडर में आता है। और जैसा बाईपास सर्जरी वगैरह है, तो उसमें भी कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन डॉक्टर को पूरी तरह से असिस्ट करते हैं। इसमें भी हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज काफ़ी हद तक है और हम अच्छा करियर बना सकते हैं किसी भी कार्डियो सर्जन के अंडर में। और कम्युनिटी मेडिसिन के बारे में तो आप जानते हैं, बेसिक ये जैसा जो भी है, एक हेल्थ केयर सेंटर होते हैं जो गवर्नमेंट के या प्राइवेट या जो भी है चैरिटेबल ट्रस्ट के हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, वहाँ से लोगों को मेडिसिन, बेसिक कैल्शियम, विटामिन वगैरह किसी भी तरह की बेसिक थेरेपी जो रेगुलर बेसिस पर पेशेंट को घर में यूज होती है, वो सारी जो मेडिसिन वगैरह का जो डिसाइड करना किसको क्या देना है क्या नहीं, तो बेसिक ये हम अगर इसे कहेंगे तो कम्युनिटी मेडिसिन एक तरह का सोशल वर्क का फील्ड है। हाँ, जो भी कम्युनिटी जो जिनके भी अंडर में आप काम कर रहे हैं, दे विल पे फॉर इट। आपको ऐसा नहीं है कि सोशल वर्किंग में ही पूरी तरह से काम करना है, बट इसमें आपको दो अपॉर्चुनिटीज है। आप एक अच्छे इरादे से अगर काम कर रहे हैं, आप इसमें सोशल वर्किंग भी करेंगे, लोगों की हेल्प भी होगी काफी हद तक, और आप अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं इसमें मेडिसिन की। और उसी के बाद सबसे आखिर में आएगा हमें एक एंडोस्कोपिक टेक्नीशियन। एंडोस्कोपी मीन्स हम जानते हैं कि आज हॉस्पिटल्स में कोई भी अगर आपको इंटरनली बॉडी इश्यू है, लाइक आपको स्टमक कुछ प्रॉब्लम है, लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आपको, तो डॉक्टर कहता है कि भाई आपका एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना होगा हमें टू नो द कॉज के अंदर कोई डैमेज है, गाट है या जो भी। सिटी स्कैन और MRI जो चीज़ डिटेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए एक फाइनल स्टेप होता है एंडोस्कोपी ऑपरेशन जो आखिर में होता है। तो उसके उसमें जो भी है डॉक्टर जो भी उसमें पता करते हैं, उसके बेसिस पर आगे पेशेंट को चाहे ट्रीट किया जाता है या ऑपरेट किया जाता है। तो उस एंडोस्कोपी प्रोसेस के अंडर में हमें डॉक्टर को पूरी तरह से असिस्ट करना होता है। इसमें जो भी मशीनरीज है वो सारा ऑपरेटिंग हमें करना है। तो बेसिकली अगर हम देखने जाए ओवरऑल सारी फील्ड में आपने देखा होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली काम यही है कि मशीनरीज को ऑपरेट करना। जो टेक्नीशियन नाम दिया गया है, पैरामेडिकल इसे इसलिए कहा जाता है कि हम 50% हम डॉक्टर को असिस्ट करते हैं। मतलब जो डॉक्टर एक डॉक्टर का काम है वो 50% हम लोग यहाँ पर करते हैं। ये पैरामेडिक नाम दिया गया है। पैरा मीन्स हाफ, मेडिक मीन्स जो मेडिकल का फील्ड है वो। तो किसी न किसी हद तक पूरी तरह से हम मेडिकल फील्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो टेक्नोलॉजी या टेक्नीशियन है वो एक, हम जैसा एक इंजीनियर को भी एक, मतलब इंजीनियर नहीं, अगर कोई भी किसी भी फील्ड में अगर काम कर रहा है मैकेनिकल, तो उसे भी एक टेक्नीशियन कहेंगे। उसी तरह से यहाँ पर हम सारी मशीनरीज को ऑपरेट कर रहे हैं। आज एक ह्यूमन बॉडी को एनालिस करने के लिए, उसको एग्जामिन करने के लिए या उसको ट्रीट करने के लिए 50% मशीनों पर आधार है, मशीन्स पर डिपेंड है। तो उन मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए हर तरह की, जिस तरह की मशीन है, जिस तरह की फैसिलिटी है, उस फील्ड के टेक्नीशियन की जरूरत हमें होती है। तो इसी तरह से ये कुछ बेसिक टेक्निकल कोर्सेस है, ये जो आज हमें यहाँ पर यूज हो रहे हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अभी हम आगे बढ़ेंगे। ये मैंने आपको कोर्सेज की कुछ डिटेल्स बताई। अब हमें इन कोर्सेज में किस तरह से एंटर करना, इसमें एलिजिबिलिटी किस तरह से होती है, एडमिशन प्रोसेस क्या होते हैं, वो भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हमें उतने ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें आप 10th और 12th दोनों में से किसी के भी बेसिस पर एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, 10th के बेसिस पर आपको बहुत कम फैकल्टीज में एडमिशन है अवेलेबल, क्योंकि 10th के बेसिस पर सिर्फ डिप्लोमा होता है और सारी फैकल्टीज में डिप्लोमा अवेलेबल नहीं है। डिप्लोमा के लिए हमें जिस तरह से लैब टेक्नीशियन में डिप्लोमा है, रेडियो में डिप्लोमा हो जाएगा, आपको ऑप्टोमेट्रिस्ट में डिप्लोमा हो जाएगा, और ये कुछ ही फील्ड है जिसमें हम डिप्लोमा कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी की सारी फील्ड में हमें BSc डिग्री, बैचलर डिग्री होना कंपलसरी है। वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी आपको उसमें 10th और 12th के बेसिस पर, 12th के बेसिस पे आपको बैचलर डिग्रीज अवेलेबल है और 10th के बेसिस पर डिप्लोमा अवेलेबल है। और आज प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी हमें गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट दोनों तरह की यूनिवर्सिटीज अवेलेबल होती है। तो हमें इसमें जो एडमिशन्स के लिए बेसिक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम कहें तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। हम 10 में बेसिक अगर हमारे एवरेज परसेंटेज भी है तो उसके बेसिस पर भी हम एडमिशन ले सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरफ आए
तो इसमें थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टफ है। जैसा कि इसमें कहा जाता है कि स्टूडेंट को 50% मार्क्स बीसीबी में होना कंपलसरी है, ये एक क्राइटेरिया दिया गया है एलिजिबिलिटी का। बट आपको एडमिशन के लिए 50% इनफ नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स बहुत कम है, बहुत लिमिटेड सीट्स है, और इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि आज हर कोई चाहता है। आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जितनी प्रैक्टिस होती है कोर्स के दौरान, उतनी प्रैक्टिस हमें प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में नहीं होती, क्योंकि उनके पास प्रैक्टिस आपको तब होगी जब आप डिग्री कर रहे हैं वहाँ पर, जब आप इंटर्नशिप ज्वाइन कर रहे हैं साथ में कहीं किसी लैब में या कहीं, तब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मगर गवर्नमेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इस तरह से नहीं है, क्योंकि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑपरेट होते हैं वो सिर्फ सेपरेटली कॉलेज नहीं होते हैं, वो प्रॉपरली आपको किसी न किसी हॉस्पिटल से कनेक्ट होते हैं। तो इसी तरह से वहाँ पर आपको एडमिशन के लिए 12 फर्स्ट बेसिक थिंग इज 12 साइंस होना कंपलसरी है, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये तीनों सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। मैथमेटिक्स हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो कोई मतलब नहीं उसमें। 12 साइंस हो प्लस 50% मार्क्स होना पीसीबी में कंपलसरी है। 50% मार्क्स हो गए तब आप सिर्फ एलिजिबल हो रहे हैं एडमिशन के लिए वहाँ पर, आप पूरी तरह से वहाँ पर सिलेक्टेड नहीं है, आपको आगे जो मेरिट बेस पर सिलेक्शन आपका होना है। उसी के साथ 12th जो है आपका 10th और 12th जो है वो महाराष्ट्र बोर्ड से होना कंपलसरी है, और गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट में इस तरह का कोई कंडीशन नहीं है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, कहीं से भी आप 10th-12th किए हैं तो यू कैन अप्लाई इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट। गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपको महाराष्ट्र बोर्ड से होना कंपलसरी है, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड है। अगर वो बाहर के स्टूडेंट्स को चांस देंगे तो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स रह जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो एवरेज हर एक हॉस्पिटल में अराउंड 120 to 130 सीट्स अवेलेबल होती है, ओवर 13 फैकल्टीज। ये जितनी मैंने अभी 13 फैकल्टीज बताया, ये सारी फैकल्टीज में मिलाकर ओवरऑल 130-140 के अराउंड सीट्स होती है। तो सिर्फ इतनी ही सीट्स है, इसलिए इन्होंने महाराष्ट्र बोर्ड का डिक्लेरेशन लिया है। बिकॉज अगर बाहर के स्टूडेंट्स को चांस दे रहे हैं तो 50% सीट्स तो बाहर ही ऑक्यूपाइड हो जाएगी, तो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को फिर कब मौका मिलेगा, इसी वजह से। और साथ ही साथ एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। अब बहुत से लोग तो जानते हैं, बनाया भी होगा उन लोगों ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो एक हमारा महाराष्ट्र रेसिडेंस प्रूफ है कि हम पिछले 12 सालों से या 15 सालों से महाराष्ट्र में हम रह रहे हैं, मोर देन 10 ईयर्स का आपका प्रूफ होना चाहिए। तो उससे प्रूफ होता है कि आप महाराष्ट्र सिटीजन है, तभी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है हमारे बेसिक कलेक्टर ऑफिस से बनते हैं, तो इसीलिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप सबसे पहली चीज़ तो है ना कि आपको आगे चल के चाहे किसी भी फैकल्टी में जाना हो, चाहे मैं मेडिकल फैकल्टी की बात करूँ या इंजीनियरिंग है या किसी भी फैकल्टी में जाना हो, आज के वक्त में डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना आपके पास जरूरी है अगर आप महाराष्ट्र से स्टडीज कर रहे हो। तो ये नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं रुकावट आनी है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आनी है। जैसा जो कुछ स्कॉलरशिप स्कीम्स चलती है, अब वो स्कीम्स कहीं कहीं होती है कि पर्टिकुलरली ये सिर्फ महाराष्ट्र में स्टूडेंट के लिए है, तो उसके लिए भी आपको प्रूव करने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। तो आप अगर वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं तभी आपका आगे काम होता है, आप उस स्कॉलरशिप एलिजिबल हैं। तो बहुत ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है इसमें, बहुत कोई मेजर हेडेक है वाला प्रोसेस नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स का बना हुआ है डोमिसाइल सर्टिफिकेट तब तो किसी बात का कोई टेंशन नहीं, बहुत इजीली आपका हो जाएगा। इनकेस अगर पेरेंट्स का डोमिसाइल नहीं बना है तो आप आपके जो बेसिक जैसा 1st to 10th के आपकी जो रिजल्ट्स होंगे वो महाराष्ट्र बोर्ड से आपने अप्लाई किया है, तो वो सारे रिजल्ट आप कलेक्ट करके या आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है वो कलेक्ट करके भी आप जाकर ये आपके कलेक्टर ऑफिस से बनवा सकते हैं, आपके एरिया की जो भी रहेगी। तो इसीलिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट पहले सबसे पहले आप लोग बनवा लें अपना, जिन्होंने नहीं बनवाया हो। और तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको समझ आ गया, मगर गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अभी का परसेंटेज कट ऑफ बहुत हाई है। जब मैंने कंप्लीट किया था, जब मैंने एडमिशन लिया था अपना 2015 के अंदर, तब इतना नहीं था। तब 52, 53, 55% तक के एडमिशन मिल जाते थे इजीली, मोर देन 50% में, मगर अब वैसा नहीं रहा है। इस साल का मैं कट ऑफ बताऊँ, अभी लास्ट वीक ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैरामेडिकल के एडमिशन क्लोज हुए, उसका कट ऑफ ये लैब फैकल्टी का कट ऑफ 82% पर क्लोज हुआ है। अब हम समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा डिमांड होगा। लैब के अंदर उनके पास 35 सीट्स अवेलेबल है, अब मोर देन 82% के सारे स्टूडेंट्स थे उसमें।
जो 35 सीट्स के जिन्होंने जो एलिजिबल हुए 35 सीट्स के लिए, तो वो सारे स्टूडेंट्स मोर देन 82% के थे, क्योंकि उन्होंने कुछ तो ऐसा था जिन्होंने नीट ऑपरेट में ये नीट एग्जाम ही नहीं दिया था, कुछ ऐसे थे जिन्होंने नीट दिया वो अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर कर पाए, उन्हें ड्रॉप आउट नहीं लेना था इस साल के लिए, किसी न किसी तरह से अपना करियर मेडिकल फील्ड में उन्हें बनाना था। ये सारी चीज़ों के लिए इस वजह से इनका कट ऑफ डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। तो आपको एक मेहनत करनी होगी अच्छी, भले नीट की इसमें ज़रूरत नहीं है, मगर 12th में आपको मार्क्स अच्छे लाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इन केस अगर आपके मार्क्स नहीं आए, आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एलिजिबल नहीं हो रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। आज मुंबई में हमारे पास बहुत से प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उनके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन गूगल से मिल जाएगा, या आप हम लोग से भी कोऑर्डिनेट करेंगे, आप वुमेन वेलफेयर टीम से भी कोऑर्डिनेट करेंगे, वो भी आपको बता देंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन से इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल है ये सारे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। तो आप उसके बेसिस पर भी आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी करके आगे आप अपना काम कर सकते हैं, इस फील्ड में करियर बना सकते हैं। तो इसके आगे हम करेंगे एक पैरामेडिकल टेक्नीशियन की ड्यूटीज एंड फंक्शंस क्या होते हैं। हाँ, पैरामेडिकल टेक्नीशियन को फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग टू, इसमें जो बहुत सी फैकल्टीज है वो 24 आवर्स सर्विस भी हम कह सकते हैं, क्या शिफ्ट वाइज काम चल रहा है। अब एक आदमी 24 आवर्स कर नहीं सकता, और शिफ्ट वाइज डे एंड नाइट सेपरेट शिफ्ट चल रही है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पैरामेडिक टेक्नीशियन को कभी भी इमरजेंसी ड्यूटी के लिए रेडी होना चाहिए, ये उसका पहला मोटो होना चाहिए। जिस तरह से एक डॉक्टर, आप एक डे एंड नाइट अगर कुछ रात में इमरजेंसी है आपको, आपके जो फैमिली फिजिशियन है आप उनसे कांटेक्ट करते हैं, तो वो आपको कभी मना नहीं करते कि रात का वक्त है, मैं नहीं करूँगा ट्रीट या जो भी है। तो इसी तरह से आपको भी इमरजेंसी ड्यूटीज के लिए रेडी होना बहुत जरूरी है। आपका माइंडसेट इस तरह से पहले से होना चाहिए कि तभी आप इस फील्ड में एक अच्छा करियर बना सकते हैं। अदरवाइज वो सिर्फ 8 घंटे की जॉब करना और रिटर्न आना, ये तो कोई भी कर सकता है डिग्री होल्डर होने के बाद, मगर आप पूरी तरह से इस फील्ड में आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको हर तरह के इमरजेंसी ड्यूटीज के लिए रेडी होना बहुत जरूरी है। विदाउट, बिकॉज आप एक बात तो आप लोग समझ रहे हैं कि विदाउट पैरामेडिक्स मेडिकल फील्ड इज नथिंग। आज अगर कोई डॉक्टर के पास, अगर आपकी कोई सर्जरी है, उस सर्जरी के पहले आपको कुछ टेस्ट के थ्रू गुजरना होता है, उसमें ब्लड टेस्ट आ गए आपके, ईसीजी हो गया, एक्सरे हो गया, या 2D को हो गया, किसी भी तरह के कोई भी टेस्ट हो गए। अगर कार्डियक रिलेटेड आपकी ट्रीटमेंट है तो कार्डियक रिलेटेड टेस्ट हो गए, न्यूरो सर्जन की कोई ट्रीटमेंट है तो न्यूरॉन से रिलेटेड आपके टेस्ट हो गए। तो ये सारे टेस्ट बहुत ज़रूरी हो गए हैं, इसलिए हमें अपना फ़र्ज़ इसमें समझना है और पूरी तरह से हमें रेडी रहना है हर तरह से, हर वक्त इसी ड्यूटीज़ के लिए। और आगे चल के आता है इसके एडमिशन प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन। जैसा कि मैंने बताया कि आपको डॉक्यूमेंटेशंस में गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइक 10th का सर्टिफिकेट है, 12th सर्टिफिकेट है, आपके आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, ये सब है। और बेसिक जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट है आपका। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं एडमिशन के, जब भी फॉर्म डिक्लेयर होते हैं, अभी ये आफ्टर कोविड वहाँ पर सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो चुका है, पहले यही सारा प्रोसेस ऑफलाइन था, वहाँ जाकर आपको कॉलेज में जाकर ऑफलाइन फॉर्म भरना होता था। और आफ्टर दैट वो आपको पहले एलिजिबिलिटी लिस्ट लगती थी कि कौन कौन से कैसे कैंडिडेट्स पहले एलिजिबल हैं इसके लिए। फर्स्ट लोग जो जिनके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है उन्हें रिजेक्ट किया जाता था, जो उनके क्राइटेरिया में जो स्टूडेंट्स फिट नहीं हो रहे हैं उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। आफ्टर दैट एलिजिबिलिटी प्रोविजनल लिस्ट करेंगे हमसे, प्रोविजनल लिस्ट लगती है। प्रोविजनल लिस्ट लगने के बाद, फॉर एग्जांपल अगर 1000 कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशन फिलअप किया है, उसमें से प्रोविजनल लिस्ट लगी, 400 कैंडिडेट रिजेक्ट हो गए, इनका किसी न किसी कारण से वो रिजेक्ट हुए हैं, तो बचे 600 स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल हुए उस टेस्ट के लिए, उस एडमिशन्स के लिए। अभी ओवर 600 उन्हें एडमिशन सिर्फ 140 को ही देना है, तो वो आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से आपको सॉर्ट आउट करेंगे सबको परसेंटेज के हिसाब से, और फिर उस हिसाब से 140 स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे और बाकी सबका रिजेक्ट होगा, क्योंकि हर एक को नहीं दे सकते। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ होता है कि हमें एडमिशन प्रोसेस पूरी तरह से पता होना चाहिए, और उस एडमिशन प्रोसेस में क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा ये भी हमें पता होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि हमने फॉर्म भर दिया, हमें डॉक्यूमेंट, हमें हमारी एक माइनर मिस्टेक की वजह से हम एलिजिबल ही ना हो,
प्रोविजनल लिस्ट में ही हमारा नाम ना आए। तो अगर हमने 90% भी लाकर अप्लाई किया है और हमने कोई माइनर मिस्टेक अगर कर दिया है एडमिशन प्रोसेस में या डॉक्यूमेंटेशन में, तो वो चीज़ हमें प्रॉब्लम दे सकती है, हम आउट ऑफ द लिस्ट हो सकते हैं। तो और ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी आपको सेम, सिर्फ बेसिक जो है कॉमर्स सर्टिफिकेट को आपको जरूरत होती है, बाकी आपको अगर 10th और 12th का सर्टिफिकेट से जो और जो भी आप XYZ जो भी डिग्री होल्डर से, इसमें आज एक 10th 11th और 12th के लिए जो लैब टेक्नीशियंस है उनके लिए एक बेसिक फील्ड चलती है, वो CMLT DMLT वगैरह कर सकते हैं 11th 12th। उन्हें 11th 12th साइंस अगर नहीं करना है, तो अगर पहले से आपने माइंड सेट कर रखा है बिफोर 10 कि आपको इसी फैकल्टी में जाना है, आगे चल के मुझे लैब में ही काम करना है, मुझे एक लैब का ही अपना सेटअप करना है, तो 11th साइंस करने की, उतना एक्टिक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो पैरामेडिक फील्ड को ही 11th से अपना एज अ करियर सिलेक्ट कर सकते हैं और आगे चल के वो उसी में अपना आफ्टर 12th डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं, ग्रेजुएशन। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें, क्योंकि आगे चल के किसी भी फैकल्टी में, सिर्फ पैरामेडिक की बात नहीं है, किसी भी फैकल्टी में आप मेडिकल फील्ड में भी जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में कोई भी फैकल्टी में जा रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप रिजेक्ट हो जाएंगे, फिर आपके परसेंटेज कितने हैं, आप फी पे कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें सेकंड नंबर पर आती है। फर्स्ट आप एलिजिबल होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे फिर कॉलेजेस के बारे में। अब प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स तो बहुत से हैं मुंबई में, हमें अंधेरी में है, कांदीवली में है, माहिम में है। अब प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, और कुछ ऐसे जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू भी आपको डिग्री कंप्लीट करवाते हैं आपका। तो ये एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उस एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आपकी डिग्रीज कंप्लीट हो रही है तो उसकी एक वैल्यू ज़्यादा है आपको। कोई अगर कॉर्पोरेट कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके रिज्यूम की वैल्यू उससे बढ़ती है कि आप डिग्री होल्डर कौन सी यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री है क्या है। तो उसके बेसिस पर वो जो HR होते हैं वो आपको एक अंदाज लगाते हैं कि भाई अगर ये जो टेक्नीशियन है उसने अगर यशवंतराव चौहान यूनिवर्सिटी से उसने अपना डिग्री कंप्लीट किया है, तो एक अच्छा उसका एक्सपीरियंस रहा होगा, क्योंकि वहाँ की स्टडीज़ अच्छी है, वहाँ की इंफॉर्मेशन अच्छी है, उस यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ाने वाले टीचर्स अच्छे हैं, जो एक अच्छे हर तरह की पूरी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो इसीलिए एक रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के इन फ्यूचर आपको जॉब के लिए कहीं ना कहीं इफेक्टिव होता है। उसके बेसिस पर आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती है, सैलरी का भी उसके बेसिस पर आपका डिपेंड है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो हमारे यहाँ मुंबई में जो ये पैरामेडिकल के कोर्सेज ऑफर करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, तो उसमें बेसिक मेजर 4 हॉस्पिटल्स हैं, जो JJ हॉस्पिटल है, नायर हॉस्पिटल है, साइन हॉस्पिटल और KEM हॉस्पिटल। ये 4 हॉस्पिटल के बारे में आप सभी लोग मोस्ट ऑफ जानते होंगे। तो ये चारों हॉस्पिटल जो है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ये पैरामेडिकल के कोर्सेज ऑफर करते हैं हर साल यहाँ पर। और इनका जो यूनिवर्सिटी होता है वो MUHS यूनिवर्सिटी है, सेम एज MBBS BUMS BHMS स्टूडेंट्स। जो एक डॉक्टर जिस यूनिवर्सिटी से आपको अपना डिग्री कंप्लीट कर रहा है, उसी यूनिवर्सिटी से आपका पैरामेडिकल का भी डिग्री कंप्लीट होता है, जो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस नासिक में है, जो हमारा यूनिवर्सिटी है। तो एक रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी है, यहाँ की डिग्री होल्डर अगर आप हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत बेहतर होगा आपके लिए। तो ये 4 हॉस्पिटल्स के लिए डिग्रीज ऑफर करते हैं। इनके जो एडमिशन प्रोसेस होते हैं वो बेसिकली अगस्त जुलाई एंडिंग या अगस्त में स्टार्ट होते हैं। जब ये मेडिकल फील्ड के MBBS BUMS BHMS BDS BMS इन सब के एडमिशन्स कंप्लीट होने के बाद पैरामेडिकल के एडमिशन स्टार्ट होते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स पैनिक होते हैं कि भाई आज बाकी सारे कॉलेजेस में एडमिशन्स हो चुके हैं, कॉलेजेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अभी तक तो एडमिशन ही स्टार्ट नहीं हुआ। तो इस तरह से नहीं, इनका प्रोसेस ही थोड़ा लेट है, क्योंकि वो जब तक के मेडिकल फील्ड की एडमिशन कंप्लीट नहीं कर लेते आपको यहाँ पर एडमिशन स्टार्ट नहीं होते। तो इसीलिए आपको यहाँ के एडमिशन जुलाई एंडिंग या अगस्त में स्टार्ट होते हैं। उस प्रोसेस को, सारे मेरिट वगैरह के प्रोसेस को 1 महीने का टाइम जाता है पूरा। आफ्टर दैट जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो आगे अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है वो भी आज बहुत सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज से कनेक्टेड है, जैसा कि मैंने बताया यशवंतराव चौहान यूनिवर्सिटी है आज महाराष्ट्र में। उसी तरह से बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, उन सब के लिए पास आप
अपनी पैरामेडिकल फील्ड की डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। और आगे इसी क्या आता है, जैसा आज हर एक को एक फिक्र होती है कि भाई मैं अगर इस फील्ड में जाऊँ तो आगे मेरा फ्यूचर क्या है। चलो 4 साल हमने गुजार लिया, डिग्री कंप्लीट कर ली, अब व्हाट नेक्स्ट, फ्यूचर का है, इसमें मैं जॉब क्या कर सकता हूँ आगे चल के, जॉब का स्कोप कितना है, मैं एक अच्छी अर्निंग कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मैं मेरा अपना खुद का प्राइवेट सेटअप कर सकता हूँ या नहीं। फाइनेंशियली जो लोग स्टेबल है उनका मोस्ट प्रॉब्ली यही थिंक होता है कि हम एक अच्छा प्राइवेट सेटअप करें, हम अपना खुद का लैब रन करें, अपना खुद का सेटअप चलाएं। तो ये सारी चीज़ें आज हर एक के माइंड में होती है। कोई भी फील्ड में एडमिशन के पहले, एडमिशन प्रोसेस समझने के बाद जो सेकंड थिंग उसके माइंड में आती है उस स्टूडेंट के, तो वो चीज़ है कि आगे चल के मुझे इसमें स्कोप क्या है। तो आज आप लोगों ने देखा होगा इस कोविड के टाइम में भी, क्या आप रेगुलरली अगर हॉस्पिटल जा रहे हैं किसी भी ट्रीटमेंट के लिए या किसी भी काम के, तो आज आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल फील्ड, मेडिकल फील्ड बहुत आगे जा चुका है। हाँ, मेडिकल फील्ड में की ज़रूरत आज हर एक घर में हर एक को है, इसके बगैर किसी का कोई काम नहीं हो रहा है। तो इसीलिए पैरामेडिक्स की भी आगे चल के सारी फैकल्टी में स्कोप बहुत ज़्यादा है। हाँ, अगर आप कहोगे कि पर्टिकुलर किसी फील्ड में आप स्कोप बताइए, तो जिस तरह से मैं कहूँगा कि लैब में है स्कोप, रेडियोग्राफी में है आपको अच्छा स्कोप, बट बात ये हो जाती है कि उसमें हर साल उतने स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं। तो आपको ओवरऑल अगर हम देखें तो सारी चीज़ें घूम फिर कर वही हो जाता है। तो आप ये नहीं सोचें कि जिस फील्ड में स्कोप ज़्यादा है वहाँ में, आप ये देखो कि आपका इंटरेस्ट किस में है। आप एक अच्छी नॉलेज के साथ, अच्छी यूनिवर्सिटी से, अच्छी जगह से आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, तो आगे चल के आपको जॉब तो मिलना ही है। क्योंकि जॉब मैंने जैसा कि बताया कि डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पर। आज कोई भी लैब हो, कोई भी हॉस्पिटल हो, उसको एक अपने पेशेंट को अच्छी ट्रीटमेंट देना है, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करना है। कोई लैब है, अगर उसे अच्छे अपने रिजल्ट्स की अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करना है, उसके पास एक महंगी मशीनरीज है, तो इसको ऑपरेट करने के लिए ऑब्वियसली वो चाहेगा कि एक अच्छा टेक्नीशियन हायर करें जिससे हर तरह की पूरी नॉलेज हो, हर तरह की, चाहे वो मशीन ऑपरेटिंग की हो या चाहे वो पेशेंट की डिजीज से रिलेटेड नॉर्मल एबनॉर्मल वैल्यूज की वो अच्छी तरह से पूरी डिटेल्स प्रोवाइड कर सके। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको पूरी तरह से इंफॉर्मेशन होना चाहिए उस फैकल्टी के बारे में, चाहे आप किसी भी फैकल्टी में। तो सारी कुछ फैकल्टी ऐसी है जिसमें हम प्राइवेटली हम अपना खुद का सेटअप कर सकते हैं, तो कुछ में हम सिर्फ जॉब कर सकते हैं, उसमें प्राइवेट सेटअप नहीं कर सकते। जैसा लैब टेक्नीशियन है, रेडियोग्राफी टेक्नीशियन है, ऑप्टोमेट्रिस्ट टेक्नीशियन है, ये सब में हम अपना खुद का सेटअप कर सकते हैं। और जो बच्चे अदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन है और परफ्यूजन टेक्नीशियन है और ऑपरेशन जनरल टेक्नीशियन है, फॉरेंसिक मेडिसिन है, इमरजेंसी मेडिसिन है, ये सब में हमें किसी भी सर्जन के अंडर में या किसी भी डॉक्टर के अंडर में, किसी एमडी के अंडर में हम काम कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये मेडिकल फील्ड, पैरामेडिकल फील्ड का मैंने एक बेसिक रिव्यू दिया आप लोगों को। बहुत ज़्यादा तो मैं सारी बातें तो अभी एक ही कॉन्फ्रेंस पर आपको नहीं बता सकता, तो इसीलिए कि जितना भी बता सकता था उतना सारी डिटेल्स मैंने बताया। अब आगे आप लोग अगर कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और इन फ्यूचर भी अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए तो आप MWF के ग्रुप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से आपको पूरी तरह से हर तरह से हर हर लाइन की, चाहे एडमिशन से रिलेटेड हो या किसी फैकल्टी के बारे में आपको जानना है, तो हमारे जो भी है स्टाफ मेंबर्स है वो सारे अवेलेबल है। इस तरह से मैं, मसूद भाई है, मसूद के रिवाल मोहम्मद है, और इसी तरह से बहुत से पैरामेडिक्स हैं, और हमारे जो डॉक्टर्स हैं, इवन डॉक्टर्स भी इसके बारे में आपको नॉलेज इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आपको अगर कोई पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है, उसके बारे में आपको और डिटेल जानना है कि क्या है वो फील्ड, क्या करना है, तो आप अपने जो फैमिली फिजिशियन है उनसे भी अगर पूछते हैं वो भी आपको बता सकते हैं इसके बारे में अच्छे से कि हाँ आप इसमें करो, इसमें ये आपको अच्छा स्कोप है, आप ये कर सकते हैं, जो भी। तो इसीलिए आपको अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन अगर पूछने हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं क्वेश्चन। और इन फ्यूचर भी अगर कोई भी किसी भी तरह की क्वेरीज है एडमिशन रिलेटेड या किसी भी तरह से, तो वो भी आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। आपको पूरी तरह से इंशाल्लाह हेल्प दी जाएगी। जो भी हमारे अवेलेबल होंगे स्टाफ वो आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। तो अभी सुफियान में बेसिक माशाल्लाह। क्वेश्चनिंग का रखेंगे। हाँ माशाल्लाह मोहम्मद भाई, बहुत ही मस्त और एकदम मतलब उम्दा इंफॉर्मेशन मिली है। इसमें से मैं तो बोलता हूँ कि 50 से 60% चीज़ें जो मुझे नहीं सीखने मिली आज। इसी तरह हमारे पार्टिसिपेंट्स में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ये बात पहली बार जानी है।
तो हाँ, किसी को कोई सवाल पूछना है तो दिस इज द राइट फोरम, अभी वक्त है, आप डायरेक्टली पूछ सकते हो ऑडियंस में से। अच्छा, मेरा मोहम्मद भाई सवाल था कि जी ये आपने बताया कि जॉब अपॉर्चुनिटीज है, पैरामेडिक्स की क्या रोल है, जिस तरीके से जी डॉक्टर तो अपना काम करता है मगर डॉक्टर कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन हिज सर्जरी या इन हिज वर्क लेस एंड until he get good support from paramedics, right? तो जी अगर एक डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है तो कम से कम 10 पैरामेडिक्स की रिक्वायरमेंट है, अगर मैं ये समझता हूँ, जनरल इक्वेशन है। तो ये जॉब मिलना क्या इतना इजी है, डिफिकल्ट है? और जस्ट लाइक फॉर मोटिवेशन पर्पस, अगर कोई देखिए पैरामेडिक इसमें होता है, हाँ हाँ, कोई पैरामेडिक होता है तो उसका टेंटेटिव सैलरी रेंज क्या होती है? अभी जिस तरह से मैं आपको एक बेसिक बेसिक सैलरी रेंज, अगर प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा कम, प्राइवेट सेक्टर में आप जाएंगे 15 to 20,000 की आपकी अर्निंग है, बराबर। और गवर्नमेंट सेक्टर्स में जिनको जैसा मैंने बताया कि कुछ फैकल्टीज ऐसी है जो प्राइवेट सेक्टर में आपका काम नहीं होगा, सिर्फ आप गवर्नमेंट सेक्टर में ही जा सकते हैं उसमें, तो वहाँ पर एक सैलरी अर्निंग और ज़्यादा अच्छा होता है, आपका एक्सपेक्टेशन आपका मोर देन 20,000 होता है वहाँ पर। और प्राइवेट सेक्टर में भी अब डिपेंड करता है आपके इन्फॉर्म आप कितनी मेहनत उसमें कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बेसिक टाइम पीरियड होता है, 8 आवर्स की ड्यूटी होती है, और हमारे पास इतना वक्त है कि हम मोर देन 8 आवर्स भी कर सकते हैं। तो आप अगर साथ में इसमें, और ये फैकल्टीज ऐसी है इसमें आप पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं मेरी अपनी बात बताऊँ तो मेरा फुल टाइम काम जो है वो सबअर्बन डायग्नोस्टिक के साथ है, जो मैं इवनिंग शिफ्ट करता हूँ वहाँ पर। जैसा फॉर एग्जाम्पल मेरी 12 बजे से इवनिंग 8 तक की शिफ्ट होती है वहाँ पर, 8 घंटे की। तो वो मेरा जो प्रॉपर जॉब है। और मॉर्निंग टाइम में अब मैं ऑब्वियसली अभी मैं सुबह फजर से लेकर घर बैठ के कोई मीनिंग है नहीं, तो मैं एक बेसिक साइड अर्निंग हो जाती है उसमें। मैं थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज कंपनी है उसके होम विजिट्स करता हूँ मैं, और उसमें मैं अपने पर्सनल क्लाइंट्स का भी काम करता हूँ। वो जो कंपनीज होती है वो हमें ऑफर करती है जिस तरह से आप अपना पर्सनल काम भी अब वहाँ अब पर 5 कर मिनट में कॉल सकते करते हैं, हैं। हम अपना पर्सनल काम भी वहाँ पर कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप डबल सैलरी अर्निंग भी कर सकते हैं कुछ फैकल्टी में। कुछ फैकल्टी में ऐसा है कि आप सिर्फ जॉब ही कर सकते हैं वहाँ। तो हाँ, मैंने जो एक एवरेज आपको सैलरी एक्सपेक्टेशन बता दी 15 to 20,000 की होती है। हाँ, आप अगर डिप्लोमा कर रहे हैं 12-13,000 तक तो एटलीस्ट आप मिनिमम अर्न कर सकते हैं इन 8 आवर्स ड्यूटी। जज़ाकल्लाह मोहम्मद भाई। और मोहम्मद, और एक चीज पूछनी थी, अगर सपोज कोई बच्चा साइंस में इतना अच्छा नहीं है, मतलब एवरेज स्टूडेंट है, हम्म, 50-60% लाने वाला स्टूडेंट है, क्या वो हम्म। पैरामेडिक्स में करियर बना सकता है? क्या उसके लिए हाँ, मैं डिफिकल्ट हो जाएगा या फिर नहीं, इजी बिल्कुल भी होगा? कोई नहीं, किसी तरह की कोई डिफिकल्टी नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो क्राइटेरियाज है सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में तो इवन अगर आप अभी जैसा प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स मैंने बताया, जैसा अभी राजस्थान में थी एक यूनिवर्सिटी, अभी मैं ज़्यादा तो नहीं जानता प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, शायद मसूद भाई जानते रहेंगे ज़्यादा इसके बारे में। तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है वो तो इवन कॉमर्स और आर्ट्स किए हुए लोगों को भी डिप्लोमा करने का मौका देती है। तो जो साइंस किए हुए स्टूडेंट्स हैं, तो अगर परसेंटेज उनका मैं कहूँगा कि 40% भी है, तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से अपना करियर इसमें बना सकते हैं। ओके। ठीक है। और आगे चल के फिर जो सैलरी अर्निंग की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो भी इतनी ही सैलरी अर्निंग कर सकते हैं जितना एक साइंस का जो एवरेज 70-75% लाने वाला स्टूडेंट कर रहा है। फिर आगे वो डिपेंड करेगा पूरी तरह से उनकी इन्फॉर्मेशन, उनके एक्सपीरियंस के ऊपर। तो उन्होंने कितना कुछ सीखा, 2 साल या 3 साल में डिप्लोमा किया, 1 साल में तो क्या सीखा उन्होंने 3 साल डिग्री किया, क्या सीखा, आगे इंटर्नशिप किया। तो इस पर डिपेंड करता है उनका सारा सैलरी। क्योंकि आगे एक एचआर अगर इंटरव्यू लेता है तो वो बिफोर इंटरव्यू तो आपको ये नहीं कहेगा कि आपकी इतनी सैलरी होगी। वो उस इंटरव्यू में समझ जाता है कि सामने वाले कैंडिडेट की कितनी कैपेसिटी है। हाँ, उस वो कितना काम हमारे पास कर सकता है तो उसके बेसिस पर उसको सैलरी ऑफर करते हैं। तो इसीलिए ओके। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि कम परसेंट है तो आप नहीं कर सकते। यू कैन, आप कभी भी कर सकते हैं, कम परसेंटेज पर भी आपके एडमिशन होते हैं। क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में इसका, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको इतने परसेंटेज होना ज़रूरी है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना ज़रूरी है। अगर कभी हम्म। कभी ऐसा होता है कि सही गाइडेंस न मिलने की वजह से स्टूडेंट्स बेचारे 10वीं कर लिए फिर उनको कुछ पता ही नहीं है आगे क्या करना है हमें, तो बस यूं ही करेक्ट। चले गए वो कॉमर्स कॉमर्स में चले गए। चलो भाई कॉमर्स परसेंटेज मेरा बोले 60% है, जाने दो, मैं साइंस नहीं करना है मुझे, मैं कॉमर्स है। अब 12th कर लिया, 12th करके उनको समझ नहीं आ रहा अब क्या करूँ। अब फिर कोई मिल गया भाई, मेरे जैसा कोई मिल गया, मैं
और मुझे बताया मैंने कि मैं ऐसा ऐसा किया हूँ, मैं पैरामेडिकल में कर रहा हूँ। अब उसको इंटरेस्ट आ गया यार, मेरे को तो पैरामेडिकल करना था, अब मैंने तो साइंस किया नहीं, अब मैं क्या करूँ? तो वो बेसिक नॉलेज इसकी पता करके वो आगे चल के प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी अपना करियर पैरामेडिकल बना सकते हैं। तो ये एक अच्छा माशाल्लाह ऑप्शन है, ये जो बेचारे जो भूले हुए लोग हैं जिनको नहीं मिला है गाइडेंस सही तरह से, उनके लिए भी करेक्ट। एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर। आज का सेशन इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों को क्यूरियोसिटी पैदा करेगा ये फील्ड के लिए। और भले हमारे पास पार्टिसिपेंट्स कम है, मगर जब हम ये रिकॉर्डिंग MWF के थ्रू लोगों को शेयर करेंगे, शायद और लोगों के अंदर इंशाल्लाह इसका क्या बोलते हैं करने की चाह पैदा हो जाए। तो जज़ाकल्लाह मोहम्मद भाई, वंडरफुल वंडरफुल सेशन भाई।